So people are worried about the questions which were given as homework. It's not that they were not able to do it, it's that they have not done it. Once ICIS put them into this kind of situation, they are interested to still remain in the same situation, is what I'm able to understand, for the people who are not coming or who are not attending the sessions. Now that's fine for me. Like today, I would have given all the lectures off comfortably, very honestly. Today, because of my health issue, I would have given all my lectures off very comfortably. Like today morning at 8 o'clock, when I had to take the lecture 7 o'clock, I was not able to speak as well. That was the kind of throat infection. But still, I felt like, nahin, the things have to move on and have come to the class. Took the lecture, first one, second one, now yours. The point is that if you are been given some responsibilities, if you are given some work of your own interest, that has to be completed. And when we miss out on such kind of things, then in that case, of course, the problem will always be there. Yep. Let me come on to this question number 9. 9 and 10, sorry, 8 and 9 are remaining, right? 8, prima facie, at the face of it, I can tell you, this is one of the simplest question. At the face of it, I can say this. I'll tell you, at the face of it, you have been asked to prepare opening and closing balance sheet, right? One of the simplest question. If you follow the trick right. And honestly, नहीं 9 का तो कैलकुलेशन करो ही मत तुम, ठीक है. Given below is the receipt and payment account and income and expenditure account of Bharat Club for the year ended 31st of December 2018. Prepare the balance sheets as on 1st of January 2018 and 31st of December 2018. I have intently put forth all the type of questions. पहला क्वेश्चन किया था हमने जिसमें हमको रिसीट पेमेंट बनाना था, दूसरा क्वेश्चन किया जहां हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था, यहां वाला क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, राइट? सर आई हैव डन होमवर्क. रुक यार, मेरे को है कितने लोगों को पता करने दे पहले. फास्ट ट्रैक ऑनलाइन अगर ज्यादा होगा तो कुछ तो समझ आएगा ना. नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है, कमाल है. That's what I'm observing. It's not about the homework. It is about the weekend, you know. People are worried about weekends more. And when the career ends, that they don't know about. Right? Okay. Opening balance. Endowment, subscriptions, entrance fee, donations for books, entertainment, sale of old furniture, book value of 8,000, salaries, creditors for provisions, printing and stationery, bank, sports material, creditors, investments purchased on 1st of July, balance carried down. Maikas? Kota kunya. Okay, no wasta schedule kara. So, ठीक है, मैं सकाळी करून द्या. पण सकाळी तुम्ही लवकर येणार का? ते मला पाठवून ठेवा, मी करतो ते. नंतर LMS ला टाकला. मला सॉफ्ट कॉपी पाठवून ठेवा, नंतर मग LMS ला पण टाका. हो, नंतर LMS ला पण टाकू. येस, ओके. Yeah. Income and expenditure account, loss on sale of furniture is 1,000. Salaries, audit fees, provisions, printing and stationery, sports material. Subscriptions, entrance fee, interest on investments, 4% on 20,000. And entertainment, excess of expenditure over income. That means there is a deficit. बस उतना ही फर्क है. Subscriptions outstanding on 31st of December 2017 were 8,000. Subscription received in advance on 31st of December 2017 is 5,000. इसके भरोसे आपको पता चलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, which will appear in the closing balance sheet. Creditors for provisions on 31st of December 2017 is 12,000. Creditors for provisions on 31st December 18 are 7,000.
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस आर 10,000। इसके भरोसे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेशनरी का या प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक कितना था, राइट? क्योंकि प्रोविजंस जिस तरह, प्रोविजंस आर नथिंग बट कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स मींस स्टोरेज, सॉरी द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और समथिंग लाइक दैट। तो इनका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब तक क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहता था, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, परचेज दिए होते थे। यहां पे आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, आपको पेमेंट टू क्रेडिट दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपने इस साल में स्टॉक परचेज कितना किया था। अब तक वाले क्वेश्चंस में कंजम्पशन कैलकुलेट करते थे हम लोग, यहां कंजम्पशन के बेसिस पे परचेज कैलकुलेट करेंगे और परचेज के बेसिस पे ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। लिंक अगर आप सही तरह से समझने की कोशिश करो, हमने अब तक जो चीजें की हैं हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, राइट? So let's start with the adjustments only. Subscription outstanding on 31st December 2017. In your opening balance sheet, onto the asset side, subscription receivable 8,000. Correct? And at the same time, in the opening balance sheet, liability side, pre-received subscription 5,000. सही है? यही लिखा है आपने। अब आपने यहां पे वर्किंग नोट के तौर पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहिए था, to find out either there are the subscription receivable or there are the pre-received subscription. I'm just preparing it here for the sake of understanding. Working note 1, subscription account. I hope you also have prepared the working note. Either statement form में और account form में, किसी भी तरह से बनाओ, but working note बनाना जरूरी है। Now, the amount of subscription income for the year is 1 lakh. The amount that you have transferred to income and expenditure account is 1 lakh. Correct? The amount of subscription that is collected during the year is 1,02,000. Yes or no? Bank 1,02,000. Subscription receivable at the beginning were 8,000. For that, at that time you had passed the entry as subscription account, subscription receivable account debit to subscription account. अब उसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। यू विल पास द एंट्री एज सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये रिसीवेबल एट द बिगिनिंग आ गया 8,000 एंड दिस इज प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग 5,000 है ना, which means what? Debit shows 1,08,000, credit shows 1,07,000, means still there is an amount of 1,000 receivable or not? Yes or no? So on the credit side, receivable 1,000, and this 1,000 will appear where? In the closing balance sheet onto the asset side. Subscription receivable 1,000. Am I right? यहां तक समझ में आ रहा है? ऑनलाइन, आई होप यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कहां जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन 12,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन 7,000 है ना। अब आप अगर क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द इक्वेशन फॉर्म, इफ यू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट, आपके ओपनिंग क्रेडिटर थे 12,000, दिस इज माई वर्किंग नोट 2। आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 7,000 रुपए, बराबर। और अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ गौर फरमाओ तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी पेमेंट साइड में दिया हुआ है 68,000। Yes or no? For that, what will be the entry? Creditors account debit to bank account or not? So creditors account में debit side में 68,000. Correct? इससे हमें क्या पता चलेगा? सिर्फ इस साल में हमने कितने प्रोविजंस परचेज किए उसका वैल्यू। हमने कितने प्रोविजंस परचेज किए सिर्फ उसी का वैल्यू पता चलेगा या नहीं? वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम हियर। क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा?
फ्रॉम द प्रोविजंस अकाउंट इटसेल्फ, जब हम लोग प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो वहां से हमें बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस मिलेगा। एम आई गोइंग राइट? तो आपने स्टेशनरी कंज्यूम कितने, सॉरी क्रेडिटर से परचेज कितने की किया? 63,000। दिस इज परचेज ऑफ प्रोविजंस। वर्किंग नोट 3, provisions account. I am deliberately presenting everything in an account form. You can either do it in the addless form also. Opening stock plus purchase minus closing stock is equal to the consumption or not. आपके रिसीट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ परचेज या पेमेंट्स मिल सकते हैं, है ना? प्लीज अंडरस्टैंड, रिसीट पेमेंट अकाउंट में दो टाइप के क्रेडिटर दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन और क्रेडिटर्स अलग अलग दिए हुए हैं, है ना? यहां हम लोग सिर्फ क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी किसी क्रेडिटर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, है ना? है जी, वो क्रेडिटर्स अलग है। क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन के लिए अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है या नहीं? दैट मीन्स क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन आर सेपरेट एंड द अदर क्रेडिटर्स आर सेपरेट, करेक्ट? अब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे गौर फरमाइए, प्रोविजंस दिया हुआ है 60,000। दिस इज नथिंग बट प्रोविजंस कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। क्या एंट्री पास करी होगी आपने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस अकाउंट और नॉट। तो प्रोविजंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? 60,000। साथ ही आपको बताया गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस इज 10,000। ये कहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस? पहले बैलेंस शीट के असेट साइड में भी जाएगा ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, स्टॉक ऑफ प्रोविजंस 10,000, और साथ ही ये प्रोविजन अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में भी अपीयर होगा या नहीं? सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 बराबर है। और आपके क्रेडिटर्स अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपको पता चला था कि इस साल में आपने कितने के प्रोविजंस परचेज किए। दैट विल बी डेबिटेड टू प्रोविजंस अकाउंट और नॉट? यू विल पास द एंट्री एज प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, सारे परचेज क्रेडिट पे है। 63,000 है ना? तो अगर क्रेडिट का टोटल है 70,000, डेबिट का टोटल है 63,000, मैंने परचेज किए थे 63,000 के, मैंने 60,000 के प्रोविजन कंज्यूम किए हुए हैं, 10,000 के प्रोविजन अभी भी बचे हुए हैं, मतलब मेरे पास ओपनिंग के 7,000 होंगे ना? यस और नो? सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर 7,000। यस और नो? और ये कहां आएगा ओपनिंग स्टॉक? इन द ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रोविजन स्टॉक 7,000, प्रोविजन स्टॉक 7,000 बराबर है। हो गया, एडजस्टमेंट्स खत्म। इसका मतलब अब जो आइटम आएंगे वो सारों के सारे एक इफेक्ट वाले होंगे या नहीं? चलो लेट्स ऑब्जर्व। पहले रिसीट पेमेंट की तरफ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? दैट विल बी अपीयरिंग इन द ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड और नॉट? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 40,000। एंडोमेंट्स, आप एक मिनट भाई साहब, ऐसे डायरेक्टली लायबिलिटी नहीं बोल सकते हैं। रिसीट्स विल बी कंपेयर्ड विथ इनकम्स, पेमेंट्स विल बी कंपेयर्ड विथ खर्चास। अगर एंडोमेंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया गया होता तो इसका मतलब उसे रेवेन्यू ट्रीट किया गया था, पर यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में है क्या एंडोमेंट्स? सो वी हैव टू अज्यूम दोज आर कैपिटल इन नेचर एंड देयरफॉर विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड और नॉट? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, कैपिटल फंड, इनर अमाउंट कॉलम ब्लैंक, क्योंकि अब तक कैपिटल फंड पता ही नहीं है ना। हाँ, एड एंडोमेंट्स। इस तरह से जा रहे हैं तो सही है ना कि मैं लिखूं? हाँ, एड एंडोमेंट्स 20,000। सब्सक्रिप्शन को पूर्ण विराम लगा चुके हम लोग।
एंट्रेंस फीस रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है 8,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट दिया हुआ है 4,000, मतलब 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड और नॉट. सो इन द बैलेंस शीट क्लोजिंग लाइबिलिटी साइड जहां पे आपने एंडोमेंट फंड लिखा, एंडोमेंट लिखा, वहीं पे नीचे ऐड एंट्रेंस फी 4,000. हाँ, इस एंडोमेंट को आप एंडोमेंट फंड करके अलग से दिखा सकते थे. Instead of adding to the capital fund, you could have shown it separately also. There is no problem. Either which way it is correct. Donation for books 13,000. Is it there? No. फिर कहां गया ये? Yes. Balance sheet, liability side. नहीं नहीं, कैपिटल फंड में क्यों जाएगा? लाइब्रेरी है क्या? डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड है ना, सो बुक्स फंड. बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड में अलग से बुक्स फंड 13,000. एंटरटेनमेंट, इज इट देयर? It is, the receipt is there in the income or not, so nothing will go into the balance sheet. Correct? Sale of old furniture, इसका अर्थ समझ रहे हो क्या? ओपनिंग में हमारे पास फर्नीचर था, कितने का? 8,000 रुपए का, जिसे हमने 7,000 में बेच दिया. 1,000 रुपए का लॉस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया. यस और नो? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, फर्नीचर 8,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, फर्नीचर इल, उतना ही था, बेच दिया, खत्म हो गया ना, फर्नीचर बचा ही नहीं कुछ. करेक्ट? रिसीट साइड खत्म हो गया. पेमेंट साइड किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्सपेंडिचर के साथ. सैलरी 72,000, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 77 दिया हुआ है, मतलब क्या? 5,000 इज स्टिल पेबल इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन टू द लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 28,000 रुपए फर्नीचर नहीं ना? ओम कहां से लेके आया बेटा 28,000? वो स्पोर्ट्स मटेरियल है बेटा. फर्नीचर और स्पोर्ट्स मटेरियल अलग अलग आइटम होते हैं. फर्नीचर इज टेबल, कुर्सी. स्पोर्ट्स मटेरियल इज बैट, बॉल, रैकेट, स्टंप्स. टेबल टेनिस का छोटा सा बॉल, टुप 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 वाला, राइट? हाँ, क्या क्या सिखाऊं मैं तुमको. हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इनटू ब्रैकेट 77,000 माइनस 72,000, अमाउंट कॉलम 5,000. बराबर है सर? इसे हम लोग प्रीपेड भी तो ट्रीट कर सकते थे ना ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में. नहीं. इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस इज नॉट प्रोवाइडेड, अज्यूम एवरीथिंग पेंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. करेक्ट है? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन ऑलरेडी डेल्ट विथ, हाँ या ना? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000 है क्या? 7,500 है, मतलब 500 स्टिल पेएबल और नॉट? अगर एक्सपेंस पेमेंट से ज्यादा है तो पेएबल, एक्सपेंस पेमेंट से कम है तो प्रीपेड. इज दैट पॉइंट राइट? इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पॉशे. करेक्ट है? नेक्स्ट, बैंक मतलब क्या? सॉरी, अब इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया हुआ है. बैलेंस कैरी डाउन तो अलग से दिया हुआ है. लॉजिकली बैंक ऐसे कभी आता नहीं है, राइट? हियर वी हैव टू प्रिज्यूम इट टू बी द बैंक ओवरड्राफ्ट एट द बिगिनिंग, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन अलग से दिया हुआ है ना. अगर वो बैलेंस कैरी डाउन अलग से नहीं दिया होता तो हम लोग बैंक को क्लोजिंग बैलेंस मान सकते थे, पर यहां पे क्योंकि इन्होंने बैलेंस कैरी डाउन अलग से दिया है, इसलिए बैंक जो लिखा हुआ है वी आर प्रिज्यूमिंग इट एज व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट. सर ऐसे तो ओपनिंग बैलेंस भी अलग से दिया हुआ है, पर वो डेबिट साइड में दिया हुआ है ना, ये क्रेडिट साइड में बैंक लिखा हुआ है. ऑलराइट? या अल्टीमेट अजम्पशन आपका ऐसा हो सकता है
कि क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली अजम्पशन बेस्ड कि आपके पास ओपनिंग में कोई बैंक बैलेंस था ही नहीं, ओपनिंग में सिर्फ कैश बैलेंस था. ड्यूरिंग द ईयर यू हैव ओपन द बैंक अकाउंट, सो दिस बैंक अकाउंट बैलेंस विल अपीयर वेयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट. अल्टीमेटली आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस शीट टोटल इन बोथ द केसेस इज गोइंग टू रिमेन सेम. क्यों, कैसे, लॉजिक बोलता हूं. ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे दिखाया तो आपका कैपिटल फंड कम हो जाएगा, राइट? और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड भी तो बढ़ जाएगा या नहीं? तो बैलेंस शीट तो एनी केस टेली होनी वाली है नहीं, राइट? हाँ, कहां दिखाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. सर हम लोग लाइबिलिटीज क्रिएट ही नहीं करते सर. बैंक बैलेंस 10,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 28,000. क्या इंडिकेट करता है? ड्यूरिंग द ईयर यू हैव परचेज्ड द स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 28,000 और नॉट. पर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया गया है? 20,000. का मतलब क्या हुआ? 8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अभी भी हमारे पास स्टॉक में पड़ा है नहीं. 28 का खरीदा, 20 का खर्च, तो 8,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल अभी भी हमारे पास स्टॉक में है. बैलेंस शीट क्लोजिंग एसेट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल इनटू ब्रैकेट 28,000 माइनस 20,000, अमाउंट कॉलम 8,000. क्रेडिटर्स 2017 के हमने इस साल में पे किए, तो ये ओपनिंग में लाइबिलिटी थी या नहीं? इसीलिए तो इस साल में पे किए होंगे ना. इसके बारे में और कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब ये इतना ही आउटस्टैंडिंग था. करेक्ट. इन द ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स एज अ सेपरेट आइटम 13,000. क्रेडिटर्स एज अ सेपरेट आइटम 13,000 लिखा. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 एट 4% एट ₹96. आपने 96 में परचेज किए, बट दे हैव नॉट मेंशन अबाउट एनीथिंग अबाउट द पार वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स. Normally, investments are given at par value. Whenever the interest has to be calculated, it has to be calculated with reference to par value. Par value मतलब it's face value, right? यहां इन्होंने इन इन्वेस्टमेंट्स की par value मेंशन नहीं की है, तो we have to assume that purchase value is the par value. लॉजिकली 100 रुपए par value होनी चाहिए थी, right? आप के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होगी एट द वैल्यू एट विच यू हैव परचेज्ड इट. अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द केस. मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद रहा हूं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की आज की फेस वैल्यू है 10 रुपए, अज्यूम. हालांकि 2 ही रुपए है, बट अज्यूम इट इज 10 रुपए का फेस वैल्यू. I cannot purchase it at face value of 10 rupees. मुकेश भाई अपन तो घर के बंदे ने, प्लीज दे दो ना. We cannot do something like that, right? I have to purchase it at the market price. आज की रिलायंस की आज की मार्केट प्राइस 2300 रुपए. So I purchase Reliance का 100 shares at 2,300. I make the investment of 2,30,000. Later on, when Reliance declares the dividend, it does not declare the dividend with reference to 2,300. It declares the dividend with reference to 10 rupees. मतलब कितना? 10 रुपए. Suppose they have declared, we declare the dividend on our shares at the rate of 500%. मतलब 50 रुपए प्रति शेयर. 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 500% means 50 रुपए. On the other day ITC का था, this year we are declaring an interim dividend of 600% of the paid up face value. Paid up face value कितना? 1 रुपया. मतलब डिविडेंड कितना दिया? 6 रुपया प्रति शेयर. बंदे खुश, यस वी आर गेटिंग डिविडेंड 600%. अबे 6 रुपए प्रति शेयर है, राइट? सो कंसीडर द एस्पेक्ट. उसी तरह से अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो, आपने मार्केट से वो डिबेंचर क्या रेट पे खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको कंपनी डिबेंचर पे ब्याज किस रेट पे देगी,
उस डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होगी उस पर. So investments are recognized and recorded in the books of accounts always at their cost. If those are long term investment. Short term investment के केस में accounting standard 13 apply होता है, and as per accounting standard 13 it should be cost or market price whichever is less. हालांकि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. क्लब है, दे कैन नॉट डू द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दे कैन नॉट गो टू द शेयर मार्केट एंड डू द डेली ट्रेडिंग. इनको जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदने होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दोज विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर बुक्स एट कॉस्ट, क्योंकि आपने आज खरीद के कल बेचने के लिए नहीं खरीदा हुआ है, आज खरीद के 10 साल बाद बेचने के लिए खरीदा हुआ है. तो इफ दैट इज द केस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एट कॉस्ट, बट उस पर जो ब्याज कैलकुलेट होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू इट्स फेस वैल्यू एंड नॉट एट द परचेज वैल्यू. Am I clear for everyone? Here, they have not mentioned about the face value, and that's why we will calculate the interest with reference to purchase value. पर यहां अगर इन्होंने मेंशन किया रहता इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड ऑन 1 जुलाई एट 4%, par value ₹100 पर इन्वेस्टमेंट, par value ₹100. अगर ये मेंशन किया होता तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हमने 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ किया होता. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? है ना? राइट डाउन द नोट. इनकम विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स. इनकम विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स. And disclosure of investments. And disclosure of investments. Under that, write down. The investments are disclosed in the balance sheet the investments are disclosed in balance sheet generally at cost. Generally at cost. Next line. However, the income on investments is calculated on its face value or par value. On its face value or par value. करेक्ट? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएगी? सिर्फ 20,000 की. क्यों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑब्जर्व करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4% ऑफ 20,000. 4% ऑफ 20,000 मतलब 800 रुपए. दैट इज द अमाउंट दैट यू शुड हैव रिसीव्ड और नॉट एज पर रिसीट इन पेमेंट अकाउंट. इज दैट रिसीव्ड? As per receipt and payment account, is that received? No. Number 1. Number 2. 4% on. नहीं. हाँ, 20,000 का 4% 800 रुपये होता है ना. How is the 1 July 2017? मतलब ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st ऑफ December 2017, राइट? नहीं 6 महीने भाई साहब, 2018 का सारा इंफॉर्मेशन था, अचानक 17 में कहां से चले गए हम लोग? नहीं. कैन आई हैव द कैलकुलेटर प्लीज? एक ही चाहिए.
नो, द पॉइंट इज, अगर इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2017 को खरीदे होते तो आपके इस साल के रिसीट पेमेंट में आ ही नहीं सकते थे। वेयर एज जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड है वो 20,000 रुपए पूरे साल का है या नहीं? 4% ऑफ 20,000, मतलब पार वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 20,000, बट द इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज्ड एट 19,200। तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 19,200 पे आने वाली है, बराबर, बट इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन दैट हैज टू बी शोन एज 800 ओनली, राइट। पर दिक्कत सिर्फ वो 2017 वाली है, वहां डेट चेंज करो। जस्ट while writing the answer you have to write purchased on 1st Jan 2018, क्योंकि पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग होगी तब ना जाके आप पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट करोगे। आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इंटरेस्ट का इनकम दिया हुआ है वो पूरे साल का इनकम दिया हुआ है नहीं, और क्योंकि वो पूरे साल का इनकम दिया हुआ है इसीलिए you have to consider even the investments as being purchased on 1st of January। सर फिर इसका मतलब पिछले साल में हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थे क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? अगर होते तो आपके पास टोटल इनकम दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड हैव बीन ऑन द प्रीवियस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। डिड यू पीपल गेट इट? हाँ, और इसके बारे में मैंने इतना क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इस साल में परचेज किए गए हैं। अगर ये 1 जुलाई 2017 की कहानी होती तो इस साल के रिसीट पेमेंट में नहीं आता, दैट वुड हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। इन दैट केस द इन्वेस्टमेंट्स वुड हैव अपीयर्ड इन द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑलराइट, चलो, नो, नथिंग टू बी रिटन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, डायरेक्टली इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन टू द एसेट साइड। 4% investments into bracket par value 20,000। कहां से आया par value 20,000 मेरे पास? From the income and expenditure account। par value 20,000। सर 800 पिछले साल का है। नहीं भाई साहब, 800 पिछले साल का नहीं है, सारा इसी साल का है। हाँ, एसेट साइड 20,000, सॉरी 19,200 आउटर अमाउंट कॉलम। मैंने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट्स विल बी डिस्क्लोज्ड एट देयर कॉस्ट, है ना? तो हम लोग इसे कॉस्ट पे डिस्क्लोज कर रहे हैं नहीं। एंड एट द सेम टाइम इनकम किस पे कैलकुलेट किया गया? पार वैल्यू पे, मतलब 20,000 रुपए पे। डिड यू गेट दैट? एंड दैट इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट। का मतलब क्या हुआ? द इंटरेस्ट इज स्टिल receivable। So closing balance sheet, asset side, interest receivable 800। सर था कितना सिंपल, आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बैलेंस शीट में सिंपली दिखाना था इन्वेस्टमेंट्स 19,200 ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 800 आउटर अमाउंट कॉलम 20,000, इतना तो था। इतना डिटेल देने की क्या जरूरत है? हम कंफ्यूज आ गए, है ना? हाँ, ये कंफ्यूजन इस समय पे जरूरी है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तैयारी जीत की, जितनी गलतियां करनी है यहां कर लो, बोर्नविटा। हाँ, बैलेंस कैरी डाउन कहां जाएगा? इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, कैश एंड बैंक बैलेंस 12,800। बराबर है? हो गया हमारा प्रॉब्लम? नहीं, वी स्टिल नीड टू कंफर्म फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई आइटम रहा तो नहीं। लॉस ऑन सेल हो गया, सैलरीज डन, ऑडिट फीस खर्च है, पेमेंट नहीं है, का मतलब क्या? इट इज स्टिल पेएबल एंड विल अपीयर वेयर? इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन टू द लाइबिलिटी साइड, ऑडिट फीस पेएबल 3,000। बराबर है? Provisions done, printing and stationery done, sports material done, subscriptions done, entrance वाली fee done, interest on investment done, entertainment done, excess of expenditure over income done, not done. This will be lessed from capital fund in the closing balance sheet or not?
सो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, कैपिटल फंड ऑलरेडी लिख चुके हो आप लोग, एंडोमेंट फंड को ऐड कर चुके हो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो डेफिसिट 23,700 बराबर है। अब क्या करना पड़ेगा, पहला ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। फाइंड हो फाइंड लिया, कितना 45,000 इज द ओपनिंग कैपिटल फंड, बस 33,000 तू 12,000 घर से लेके आई थी, ₹13,000 क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजन भी तो है ना 12,000 के, दो दो क्रेडिटर है ना सर, ये इतने सारे क्रेडिटर रखते क्यों आप, है ना। अरे बेटा जब एक बंदे से उधार ले ली जाए ना तो दूसरी बार उससे वापस हो तो उधार ले सकते हैं, इसलिए मल्टीपल क्रेडिटर रखने जरूरी होते हैं। पहले वाले से उधार लेके दूसरे वाले को पे करो, दूसरे वाले से उधार लेके तीसरे वाले को पे करो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, अपनी कहानी चलती रहे, है ना। 33,000 is the opening capital fund and therefore the total of closing balance sheet comes to 80,700, 80700, 61,800, 61,800 है जी कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड आउटर अमाउंट कॉलम कितना है, अबे 80,700 का कैपिटल फंड होगा तो बैलेंस शीट तो और बढ़नी चाहिए फिर, 23,700 ऐड किया है तूने, लेस करने हैं, अबे डेफिसिट है 61,800, नहीं टैली हो रहा, यार मेरे सामने तो कम से कम इतना मत बोला करो तुम बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। अगर हमने हर आइटम के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दिए हैं, हमने अगर बैलेंस शीट में हर आइटम को बराबर दिखाया है तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 61,800 is the balance sheet total। 23,700 तेरा मिस्टेक कितने का हो, मतलब है 47,400 का, क्योंकि तूने 23,700 लेस करने के बजाय ऐड कर दिया तो डबल इफेक्ट हो गया, 47,400 का मिस्टेक। अच्छा एग्जाम में एग्जाम में एग्जाम में एग्जाम में गौर फरमाइए, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि हमने सारे इफेक्ट दे दिए, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो, एनपीओ का क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, सारे इफेक्ट दे दिए पर बैलेंस शीट को टैली होने को तैयार नहीं, राइट द डिफरेंट टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स, राइट द डिफरेंट टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स। और अगर तुमको पता लगाना ही है, समय है अपने पास, होता नहीं है पता है पर है, क्योंकि बाकी कुछ आ ही नहीं रहा है तो समय है। अगर समय है तो इन दैट केस वॉट एवर इज द डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। जब भी आपके बैलेंस शीट के टोटल में मिस्टेक आए, राइट, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का तरीका उसी अमाउंट को आइडेंटिफाई करो, सारे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें स्कैन करो, और अगर वो नहीं है, वो अमाउंट नहीं है तो डिवाइडेड बाय 2 एंड देन स्कैन इट। आपने अपोजिट साइड वाली मिस्टेक की होगी जैसे भाई साहब ने अभी की थी, आइदर फाइंड द सेम अमाउंट और ट्राई टू फाइंड द हाफ अमाउंट।
वो स्कैन करोगे तो आपका 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगा, राइट? बैलेंस शीट टैली करने के तरीके, जुगाड़ से नहीं, लॉजिक से। और उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो इग्नोर इट कन्वीनियंटली, डू नॉट बर्बादोफाई योर टाइम ऑन दैट, जस्ट राइट, ऐसा वो स्लांट में लिखते हैं ना हम लोग, क्रॉस में से, जस्ट क्रॉस इट ऐसा, काइंड ऑफ दिस, एंड राइट द टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स, अलग अलग वाली टोटल, सेम टोटल नहीं, राइट? नहीं तो दोनों में से एक जो अच्छी लग रही वो लिख देते हैं। हाँ, लाइब्रेरी साइड की टोटल अलग, असेट साइड की टोटल अलग लिख दो। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे हमारे आईसीएआई के पास प्रेसिडेंट ने कहा हुआ है। जब मैं स्टूडेंट था तब वो पास प्रेसिडेंट नहीं थे, तब वो चेयरमैन थे नागपुर ब्रांच के, जयदीप शाह सर, इज बीन द पास प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। वी हैड आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन व्हेन वी वर इन सीए फाउंडेशन। अमरावती आए थे किसी काम से और हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था उनका। वी हैड आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली, सर अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, समय भी नहीं है, he conveniently said, write the different totals on both the sides. Examiner will at least understand what has gone wrong. And the moment examiner understands what has gone wrong, ignoring that, he'll focus on the remaining things or not. हालांकि आजकल का पेपर चेक करने का तरीका बदल गया है। आजकल तो वो इफेक्ट्स चेक करते हैं, वो टिक टिक करते हैं तो अपने आप मार्क्स अलोकेट होना चालू हो जाते हैं, ऑनलाइन होता है आजकल। बट स्टिल राइट द डिफरेंट टोटल्स, एटलीस्ट एग्जामिनर के दिमाग में क्लियर होगा ये बंदे ने मिस्टेक कहां की है। दे अंडरस्टैंड इट फास्टर, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल ऑफ द पेपर्स चेक किए होते, और गलती से वो तुम्हारा पेपर है पहला वाला, तो फिर तो गहराई में चेक करेगा बंदा। हमारे पास एक एग्जामिनर है, पेपर चेक करते हैं हमारे, वो कहते हैं मनीष सर पहला पेपर चेक करने के लिए मेरे को 1.5 दिन लगता है, पहला पेपर चेक करने को पूरा 1.5 दिन लगाता हूं। बोला ये गणपति थोड़ी है यार कि पूरा 1.5 दिन लगाऊंगा, राइट? वो 1.5 दिवसाचा गणपति, राइट? क्यों? तो ही रीड्स थ्रू एवरीथिंग, ही गोज थ्रू एवरीथिंग इन द होल पेपर। वो तो पहले आंसर पेपर मंगा लेते हमसे, कहते पहले मैं क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर छानबीन लूं, क्या कहां कैसे कब कैसे होगा, और उसके बाद पेपर चेक करना चालू करते। मतलब ही द एग्जामिनर नोज एवरीथिंग अबाउट योर आंसर्स। आप कहां सही हो सकते हो, कहां गलत हो सकते हो, ये उनको एट द ग्लिम्स पता होता है, राइट? तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने, 3 तरीके बताए मैंने। पहला, स्कैन द सेम अमाउंट। दूसरा, स्कैन द हाफ अमाउंट। तीसरा, राइट द डिफरेंट टोटल्स, विषय ओवर, गो अहेड, डोंट वेस्ट योर फर्दर टाइम। हाँ, आखिरी में मिल गया मौका, बाजू वाले ने बता दी बैलेंस शीट की टोटल क्या है, भले उसकी भी गलत है पर बताइए ना, और अपनी दोनों में से एक टोटल के साथ मैच हो रही है, फिर जो वाली टोटल मैच नहीं हो रही है उधर के साइड के आइटम चेक करवा लो, राइट? अपने आप बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, राइट? अलग अलग तरीके, जुगाड़ है, पर मैं चाहता हूं कि आप ये सिचुएशन तक आओ ही नहीं। और ये कब होगा? जो मैं आज क्वेश्चंस भाई भेजूंगा ना, वो क्वेश्चंस कल पूरा दिन बैठ के जब तुम सॉल्व करोगे ना, आई एम गोइंग टू कंडक्ट 2 सेपरेट यूट्यूब लाइव सेशंस फॉर गिविंग द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस, अदर देन दीज लेक्चर्स। ये जो आपके फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स हैं इसको छोड़ के 2 YouTube live sessions early in the morning I'm going to conduct on Tuesday and Wednesday. In those 2 sessions I'm going to give you the answers of all those questions. मतलब आंसर्स तो मैं ऐसे भी शेयर कर सकता हूं, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज आंसर्स। मतलब उसके मेजर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ज्यादा नहीं है, कुछ 10-12 ही क्वेश्चंस है, 2 दिन का समय, संडे पूरा, मंडे पूरा। Ninth question. I hope you understood. The last question of discussion for the NPO. From Monday we are going to start with final accounts. मतलब 3 मेजर चैप्टर खत्म।
आपके फाउंडेशन जून 2023 एग्जाम में से 40 मार्क कवर हो गए अगर फाइनल अकाउंट खत्म हो जाता है नेक्स्ट वीक तक तो, राइट? फाइनल अकाउंट बढ़िया है सर, सिंपल है, एक ट्रायल बैलेंस 5 एडजस्टमेंट खत्म। अभी क्या 12th स्टैंडर्ड है? मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा तब पता चलेगा ना। हाँ सर 2 दिन पहले शेयर करके रखो सर। वेल साहब बोल रहे हैं सर हमारे पास भी 1.5 ही दिन है ना, कल का पूरा दिन और परसों का आधा दिन, 1.5 दिवस। अरे गणपति के पीछे लगे हुए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल, अच्छा ट्रायल बैलेंस वाला भी क्वेश्चन था, तो चारों वैरायटी, क्या बात है यार। वो क्वेश्चंस के बाद तो ऐसे लगेगा एनपीओ आता ही नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई हैव लिव्ड अ वर्ल्ड in the most pessimistic situations, absolutely against me. Coming into the CA course was the most pessimistic situation from which I was coming in. मतलब अक्खे खानदान में पढ़ने वाले बंदे का बैकग्राउंड नहीं था। सीए कोर्स की बात छोड़ दो कि कोई सीए नहीं था, कोई साइंस वाला नहीं था वगैरह वगैरह, ये बातें छोड़ दो कि बाकी सारे साइंस वाले थे, मैं पहला कॉमर्स वाला बंदा, ये तो आजकल की कहानी होती है। उस समय की कहानी, अक्खे खानदान में, चाहे मेरे पापा के साइड से हो चाहे मेरे मां के साइड से हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब 10th तक जैसे तैसे, और उसके बाद अपनी दुकानदारी जिंदाबाद। ये वाले बैकग्राउंड में से मैं सीए करने आया, राइट? दूसरा 11th 12th कभी कॉलेज नहीं गया, एडवर्सिटी की लेवल देखो। वो 11th में तो कहानी अलग थी, 12th में जैसे तैसे वो क्लास लगाई थी तो पास हो गया। एडवांटेज सिर्फ ये था कि जब पढ़ने बैठते थे तो ग्रास्पिंग अच्छी थी, पर कभी कॉलेज नहीं गया। और 12th हो गया, फिक्स था अपन ने एक दुकान लगानी है कपड़े की, अहमदाबाद, बलोत्रा, पाली, यहां से कपड़ा लाना है, यहां पे स्टिचिंग करवानी है और स्टिचिंग करवा के मार्केट में बेचना है। ये तरीका था, फिक्स था। शायद वो किया होता तो आज की सिचुएशन बहुत अलग होती। और उस बैकग्राउंड को छोड़ के मैं सीए करने आया। न पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड, न पढ़ने का बैकग्राउंड खुद के। तो 12th स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस आधा घंटा जब पढ़ाई करता था ना, मैं मेरे को लगता था कि 2 दिन से अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनेस्टली एक हाथ फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना आधे घंटे में, यस, भले वो टैली ना हो, प्रॉब्लम तो कंप्लीट किया ना। फाइनेंशियल बैकग्राउंड भूल ही जाओ, मतलब बहुत ही पैथेटिक। My parents, I owe 100% of what I am today to them. They have created me. मतलब नहीं होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश की, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग। पूरा का पूरा खानदान अगेंस्ट था कि तू क्या कर रहा है, क्यों अपने बच्चों को पढ़वा रहा है, जरूरत ही नहीं है, अपने पास सेट बिजनेस है, दे कैन स्टार्ट द बिजनेस ओवरनाइट, लेट देम कंटिन्यू विद दैट। तो मुझे याद है मैं इंटरमीडिएट में यहां से वापस जाना चाहता था कि अब अमरावती में जाके वहीं पे आर्टिकलशिप करेंगे, खर्चा थोड़ा कम होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में गए थे और मेरे अंकल थे, मतलब फूफा जी होता है ना घर में, मतलब घर में सबसे बड़ा कौन? तो फूफा जी, जो भाई है ना। तो उनके साथ चला गया था, वो सीए के साथ मैं इंग्लिश में बात कर रहा था और फूफा जी एकदम ईगो हर्ट हो गया उनका, मैं सामने बैठा हूं तो मेरे सामने इंग्लिश में बात कर रहा था। और नीचे उतरे, वो बात हो गई, मैं उनको मना करके आ गया, नहीं नहीं मैंने तो आपके पास काम ही नहीं करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो काम देखा हुआ था वो तो बहुत अलग लेवल का था, वो भाई साहब के पास काम ही नहीं था उस कंपैरिजन में। नीचे उतरे, मैंने फूफा जी को बोल दिया मैंने नहीं करना यहाँ पे काम, मैं जा रहा हूँ पुणे वापस। कहते वो सब ठीक है, इतनी इंग्लिश क्यों झाड़ रहा था? यार ये हद होगी।
कोई तरीका ही नहीं था ना, पढ़ना लिखना वॉज नॉट अ क्वेश्चन। या हमारे घर में सबसे पढ़े लिखे कौन, तो सबसे ज्यादा तजुर्बेदार कौन, तो फूफा जी, दैट काइंड ऑफ कैटेगरी। और इन एडवर्सिटीज में से बाहर निकलने के बाद अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं, मेरे पास उतनी अक्ल नहीं थी जितनी तुम्हारे पास आज है, एक। मेरे पास ऐसे टीचर नहीं थे जिस लेवल के टीचर्स तुम्हारे पास आज हैं, दो। उस समय पे हमने अगर किसी टीचर को कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया होता ना कंसेप्ट लेवल का, तो हमको तो सब सिंपल सा जवाब होता था, ये ऐसा ही होता है। और अगर थोड़ा सा और टटोला, नहीं नहीं बताओ ना कैसे होता है, अबे तेरे को बताया उतना सॉल्व कर, एग्जाम पास करनी है ना। इस तरह के आंसर्स हम लोग सुनते थे। तुम्हारे पास ये सिचुएशन नहीं है, तुम सवाल लेके आओ किसी भी फैकल्टी के पास, यू गो टू एनी डैम फैकल्टी, यू टेक द क्वेश्चन एंड यू विल गो टू द कोर ऑफ इट, यू कैन गेट टू नो द कोर ऑफ इट, ये ऐसा क्यों, वहां से स्टार्ट होता है। और ये ऐसा नहीं कि नहीं नहीं तू कल पूछने आना मेरे को, कल तक के मैं पढ़ के आएगा, नहीं, आप भी इधर कोई सी भी सिचुएशन ले जाओ ना, यू गेट द आंसर देयर। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी अगर तुम्हारे साथ में जिंदगी में है, तो काहे तुमको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मेरे को यहां से मुंबई जाना है, यार मुंबई जाने के लिए ट्रेन में जाना पड़ेगा, सुबह उठूंगा मैं, बंदा रात भर सोता ही नहीं है। Why to have the pessimism in the life? I don't know. And I am the kind of person who does not think negative at all. I am not a kind of person who can think negative. Most pathetic situation में भी मैं solution ढूंढता हूं, कुछ ना कुछ तो solution होगा ही होगा ना। और यही आपको करना है। अगर आप अभी भी उसी निगेटिविटी में रहोगे, अगर आप अभी भी इसी सिचुएशन में रहोगे, यार अपन तो फेल हो गए, अबे फेल ही हुए हो ना, कौन सी बड़ी बात है। जिंदगी में लोग क्या फेल नहीं होते, तुम क्या पहले हो। सर हम पहले नहीं, पर है तो पहली बार ना। दिक्कत वहां है कि ये पहली बार है, इसीलिए अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, इसीलिए निगेटिव मेंटेलिटी हो रही है। भाई तू 50 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर, तेरे को 51वां प्रॉब्लम अपने आप बन जाएगा। मुझे याद है सीए फाउंडेशन में जब मैं था, 1997-98 की बात कर रहा हूं मैं, तब इंटीग्रेशन, हम तो मैथ्स लिखते थे ना, तुम्हारे जैसे अकड़ मकड़ बॉम्बे वाला काम नहीं था हमारे पास। मैथ्स हमको सॉल्व करना होता था। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कितना भी लेके आओ वो सांप डस ही रहा है। वो इंटीग्रेशन में होता है ना ऐसे। हाँ, और मेरे साथ कुछ 12-15 और बच्चे थे, हम लोग गए वो मैथ्स के फैकल्टी के पास। हमारा एडवांटेज ये था कि वो हमारे फैकल्टी बैचलर थे उस समय पे। रात को 8 से 11 बजे तक उनके रूम पे जाके बैठते थे हम लोग। तो दिन में वो सुबह में क्लास पढ़ाते थे हमको, और रात को 8 से 11 हम उनके रूम पे बैठे, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ऑनेस्टली we would literally solve the questions every day related to the topic, and we did this for 2 months till the time we got into that particular chapter. Conquer the thing that troubles you the most. जिससे तकलीफ होती है उसको पहले खत्म करने की कोशिश करो। Believe in Ayurvedic, not in allopathy. Slowly but steadily. आज नहीं आ रहा है ना, 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, शायद आ जाए। ब्रेक लेते हैं आधे घंटे का, वापस से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, शायद आ जाए। मिस्टेक हर बार सेम कंसेप्ट में तो नहीं करेंगे ना, हर बार एक अलग नए कंसेप्ट में मिस्टेक करेंगे या नहीं। 4 प्रॉब्लम लिए मैंने सिर्फ क्लास में, चारों प्रॉब्लम अलग अलग तरीके के, तो यहां तो मिस्टेक होनी चाहिए थी ना भाई साहब। यहां कैसे तुमको इजीली आ जाएगा, अगर वो आ ही जाता तो तुम यहां क्यों होते। फैक्ट है ना, लेट्स एक्सेप्ट इट। एंड कॉन्करिंग द फेल्यूर, द फर्स्ट स्टेप टू कॉन्करिंग द फेल्यूर इज टू एक्सेप्ट दैट फेल्यूर फर्स्ट। यस आई फेल्ड, फाइन, नाउ व्हाट, आई कैन गो अहेड ना। मैंने जहां जहां गलती की थी, जो जो मिस्टेक की थी, उसको अवॉइड करके आगे बढ़ना है। मतलब ये तो ऐसे हुआ, हम लोग रास्ते से गाड़ी लेके जा रहे हैं, 2 व्हीलर एकदम फुल स्पीड में, मतलब 80 की स्पीड। एक बार गाड़ी चलाना आ गई तो अपने को ऐसे लगता है अपन नीचे रास्ते के राजा, और फुल स्पीड में जा रहे हैं, उधर से एकदम 2 व्हीलर या दूसरा एक गाड़ी आया और ठाड़। डज दैट मीन यू विल नेवर ड्राइव द व्हीकल अगेन?
नहीं मेरे को तो गाड़ी चलाने आती ही नहीं है, मेरे को तो किसी ने ठोक दिया, मैंने तो, मेरी गलती। यू स्टिल ड्राइव द व्हीकल अगेन और नॉट? अगर मेजर इंजरी हो जाए उसके बाद में भी हम लोग गाड़ी चलाने जाते हैं, क्यों? मिस्टेक ही हुई थी ना, अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार ध्यान से चलाएंगे। दैट इज वॉट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ, वही करना है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी जिसमें हो सकता है कि आप वापस फेल हो। जिंदगी की सिचुएशंस की बात कर रहा हूं, सीए कोर्स में तो वापस से फेलियर आना नहीं है, अगर आया तो छोड़ देना। और आगे चल के अगर जिंदगी में कहीं फेलियर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम वो जिंदगी जीना छोड़ दोगे? यू आर गोइंग टू लीव और अवॉइड और गो अहेड ऑफ दैट और नॉट, and that is what is expected, my dear friends. Do not have the pessimism in life. Negativity, thinking negative is crime. आज की तारीख में हमारी सिचुएशन में इतनी निगेटिविटीज हैं, हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी निगेटिविटीज हैं, बंदा चलते फिरते हमको हर चीज में निगेटिव कर देता है। तो सिंपल बोलो ना, हम लोग घर से निकल रहे हैं क्लास के लिए, और क्लास के लिए निकलते निकलते घर वाले एक बार पूछ ही लेते, हो जाएगा इस बार? इससे बड़ी क्या निगेटिविटी हो सकती है? और ये रोज होता है, ऑलमोस्ट रोज होता है। हर दिन उस चीज को पार करके आगे आते हो या नहीं? अगर आते हो तो करके दिखाओ ना, एंड दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज, ट्राई टू फोकस। ये बहुत चिल्लर सा स्टेटमेंट था सर, फिर तो हमसे वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाए। ऐसे कैसे नहीं होंगे यार? मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्वेश्चन को सॉल्व होना पड़ेगा। दैट शुड बी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। गलत होगा ना, सॉल्व कैसे नहीं होगा? गलती हो सकता है ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? और आंसर गलत होना इज नॉट अ बिग डील। मैं तो कहता हूं गलतियां करो, जितनी करनी है यहां करो, सिर्फ रिपीट मत करो। हर समय आप सेम गलती मत करो। डूइंग अ मिस्टेक इज अ गुड साइन, एट लीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। हम लोग वो मिस्टेक होने के चक्कर में प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करते। छोड़ यार, कौन सॉल्व करेगा, मास्टर तो वैसे भी करवाने वाला है, क्या जरूरत है, खुद कब सीखोगे? राइट? कम बैक। आपको डर नहीं लगता था व्हेन यू वेर इन फाउंडेशन? ले भाई साहब, अबे मैं फाइनल में 3 बार फेल हुआ हूं, 3 बार। और तो भी जब भी एग्जाम देने जाते थे क्या डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी पिक्चर रिलीज हुई है, मैच का स्कोर क्या चल रहा है। तो हमारा सारा ग्रुप ही ऐसा था, सारे वेल्ले। मैं एग्जाम टाइम के 2 घंटे पहले बुक छोड़ दिया करता था, उसके बाद बुक को टच भी नहीं करता था। एग्जाम से क्वेश्चन पेपर लेके आता था, वो क्वेश्चन पेपर अगले दिन जब एग्जाम के लिए जा रहा हूं तब निकालता था। मैं वापस क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखता था। कॉन्फिडेंस इतना होता था ना अपने ऊपर, भले ओवर था पर था ना, राइट? तो यही होना चाहिए। एग्जाम में खुद को तुम वीक नहीं कर सकते हो। नेवर एवर ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, राइट? सीए फाइनल में तो सिचुएशन बन गई थी, जब फाइनल का फाइनल वाला एग्जाम देने गया था ना, फाइनल का फाइनल वाला लास्ट अटेम्प्ट, नवंबर 2003। पहला पेपर कॉस्टिंग, बढ़िया गया था पेपर, 60 तो कैसे भी मिल जाएंगे, दैट काइंड ऑफ पेपर। दूसरा पेपर डीटी, कोइंसिडेंटली अच्छा गया। आईडीटी कवर्ड अप, नो प्रॉब्लम, पास हो जाएंगे। चौथा पेपर था MICS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल। बकवास, अल्ट्रा बकवास पेपर। सीए कोर्स में इन जैसे पेपर्स के लिए बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, पर होती है। अभी जो रिसेंटली एक पेपर डिलीट किया ACI ने, इसका जैसे इंटरमीडिएट में EIS है, उस तरह का पेपर MICS हुआ करता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑडिट। तो ये पेपर नॉर्मली जब क्वेश्चन पेपर आता है ना ICI का, तो बुकलेट फॉर्म में आता है, 15 पन्ने 20 पन्ने। एग्जाम लिखने गए, MICS का पेपर, 1 पन्ने का क्वेश्चन पेपर, फ्रंट बैक खत्म।
फ्रंट बैक खत्म, सिंगल पेज। मैं क्या आईसीआई इतना कॉस्ट कटिंग कर रही है, एक पन्ने में सब एडजस्ट कर लिया। आज तक की हिस्ट्री सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अब की हिस्ट्री सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, काइंड ऑफ दैट क्वेश्चंस। बेटा उस क्वेश्चन पेपर को मैंने 20 मिनट तक 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लिया, समझ ही नहीं है स्टार्ट कहां से करूं। 20 मिनट तक पेपर सॉल्व नहीं किया था मैंने, स्टार्ट भी नहीं, मतलब ऐसा वो क्वेश्चन नंबर वो भी नहीं लिखा था। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड आंसरिंग दैट क्वेश्चन पेपर विद इन नेक्स्ट 2.5 आवर, मतलब अभी आधा घंटा स्पेयर में था, आई कंप्लीटेड द होल 100 मार्क का पेपर। उस 20वें मिनट पे सिचुएशन ऐसी थी, मनीष चल अगले अटेम्प्ट में आएंगे अपन। सीए कोर्स में बड़ा सिंपल होता है, फाइनल लेवल पे तो बहुत ही सिंपल। आजकल तो आईसीआई ने फैसिलिटी भी दे रखी है, दे गिव यू 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ना, वो सिर्फ इसलिए डिसाइड कर अब की अगले अटेम्प्ट। सी आईसीआई आंसर शीट भी वेस्ट नहीं करना चाहती है, अभी बैठना है कि अगले अटेम्प्ट में आना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सीए फाउंडेशन वाला बंदा एकदम स्टबर्न होता है, नहीं मैंने तो पेपर लिख के ही जाना है, पैसे वसूल करके जाना है। इंटरमीडिएट वाला समहाउ मैनेज करता है, फाइनल वाला बंदा तो क्लियर इन माइंड होता है। जो बंदा सीए फाइनल में होता है ना, पहले 15 मिनट में रियलाइज हो जाता है कि ये अटेम्प्ट क्लियर है कि अगले अटेम्प्ट में आना है। अगर अगले अटेम्प्ट में आना है तो इस अटेम्प्ट को बर्बाद क्यों करना है, चल आज से पढ़ाई चालू, ये लो आंसर शीट वापस चले। व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, पहला अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस, क्लास में 40 बंदे, हम खुश, भीड़ है। दूसरा दिन, मतलब पहला हमारे तो पेपर एवरीडे होते थे ना, आजकल अल्टरनेट डे होते हैं, पहले एवरीडे, आज पेपर कल पेपर परसों पेपर तरसों पेपर, कंटिन्यूस पेपर पेपर। वी नेवर यूज्ड टू हैव द ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। और हमारी तो एक अटेम्प्ट आई थी सीए फाइनल, मैं सीए फाइनल जो मैंने अटेम्प्ट दी पहली वाली उसी में था शायद, कोई तो पॉलिटिकल इलेक्शंस थे और उस वजह से संडे की भी छुट्टी नहीं आई थी। 8 पेपर 8 दिन कंटिन्यूस, सुबह 8 से 11 लिखे हमने। तो सीए फाइनल का पेपर लिखने जाते थे हम लोग, पहला पेपर पूरी भीड़ है, दूसरा पेपर 2 गायब है, सरेंडर, अगला अटेम्प्ट। पेपर मतलब फर्स्ट ग्रुप का आखिरी पेपर आते आते समझ आ जाता था क्लास में 20 ही बचे, इतनी कंपटीशन बची अपने को, है ना। वो 20 ही, मतलब पास तो वही हो गए ना, और कौन होगा, जो पेपर ही नहीं दे रहा वो कहां से पास होगा। दैट यूज्ड टू बी द केस, और आज भी ऐसा होता है। सीए फाइनल में बंदा पहले ही दिन पे, पहले पॉइंट पे रियलाइज कर लेता है कि अगले अटेम्प्ट में आना है तो अगला समय क्यों वेस्ट करना है, आज से ही पढ़ाई चालू। करता नहीं, वो बात अलग है। पर ऑल सेड एंड डन, कहानियां बताने के लिए बहुत सारी हैं, पर मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात बोलता हूं, कहानी सुनने के बजाय कहानी बनो। और जिस दिन तुम कहानी बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे जैसा फीलिंग और किसी का नहीं हो सकता है। Just imagine that as a situation that 5 years down the line, I am talking to someone and I am giving them your example, and that person comes to you, यार तेरे बारे में मास्टर ने बात की थी। फीलिंग सोचो, फीलिंग सोचो। कहानी सुनना बहुत अच्छी बात है, कहानी बनना सबसे बढ़िया बात है। कहानी बनो, राइट। अभी अपन इस क्वेश्चन की कहानी बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द पब्लिक स्कूल, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। यहां कहानी बड़ी सिंपल है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम का 1 इफेक्ट, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, राइट। बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स एट 9%, सैलरीज, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, admission fees, tuition and other fees received, creditors for supplies, rent for hall, miscellaneous receipts, government grant, general fund, interest on investment, net of tax, donations received for purchase of library books, sale of old furniture, fees yet to be received for the year 2000 year is 15,000, salaries included, payment of 18,000 for next year, that means prepaid salaries. फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 वाज परचेज्ड ऑन 1st of October 2019। इसका मतलब जो आपके ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस और नॉट। उसमें से 15,000 का फर्नीचर आपने इस साल में खरीदा है, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का था 25,000 रुपए, है ना। तो उस 25,000 रुपए अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो पूरे साल का आएगा, और जो 15,000 है उस पर आधे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। आधा ही साल आएगा ना, नहीं 3 महीना, 31 दिसंबर है।
The book value of the furniture sold was 19,000 on 1st of July 2019. Depreciation is to be charged at 10% per annum on furniture and fittings and 15% on library books, 5% on building. अब जहां तक library books और building की बात की गई है वहां पे per annum वो यूज किया हुआ है क्या? मतलब क्या? जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर डायरेक्टली 15% 5% चार्ज करना है या नहीं? इज द पॉइंट राइट? चलो स्टार्ट प्रिपेयरिंग. हाँ अच्छा किया हुआ सॉल्व तुमने? वेरी गुड. चेक करो फिर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय ट्यूशन एंड अदर फीस इनर अमाउंट कॉलम 2 लाख. एड रिसीवेबल 15,000. आउटर अमाउंट कॉलम 2,15,000 है ना. बैलेंस शीट असेट साइड फीस रिसीवेबल 15,000 है ना. नेक्स्ट salaries prepaid income and expenditure account debit side 2 salaries inner amount column 2 lakh less prepaid 18,000 outer amount column 1 lakh 82,000 balance sheet asset side prepaid salaries 18,000 furniture balance sheet asset side furniture inner amount column 40,000 less depreciation 2,500 plus 750 that is 3,250 नहीं सॉरी 750 नहीं 2,500 ओपनिंग बैलेंस पे. क्या आप लोगों ने कुछ ऐसे किया है जैसे मैं बोल रहा हूं? सुनो. फर्नीचर एंड फिटिंग इनर अमाउंट कॉलम 40,000 एड परचेज 15,000 लेस डेप्रीसिएशन 4,000 प्लस कितना है वो 375 4,375. इज इट राइट? ऐसे किया आप लोगों ने? आप गलत हो. अच्छा फर्नीचर बेचा भी है, खरीदा भी है, तो इसका मतलब फर्नीचर का अकाउंट बनाना है. फर्नीचर सोल्ड कहां दिया हुआ है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ऑन 19,000 and furniture costing rupees 15,000 was purchased. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8,000 रुपए दिया हुआ है, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000. करेक्ट सर. पर वो डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना चाहिए ना फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 1st ऑफ सॉरी 30th ऑफ जून. 6 महीने का डिप्रिसिएशन है ना. व्हाट देव गिवन? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 19,000 ऑन 1st जुलाई. मतलब दैट मस्ट बी आफ्टर चार्जिंग द डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और नॉट. मतलब उस असेट की ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू कितनी थी? 20,000. 20,000. सर ये कहां से लेके आए आप? ऐसा कोई करता है सर? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे है जी. बुक वैल्यू कब की दी हुई है? 1st जुलाई की ना. और तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट का होगा? 1st जैन का. मतलब 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा ना, बराबर ना. बाय बैलेंस कैरीड डाउन 40,000. समझ लो, पहले समझ लो. करेक्ट. 1st October 19 टू बैंक 15,000 है ना. 1st July 19 बाय बैंक 8,000 बाय लॉस ऑन सेल 11,000 है ना. पर जब कभी भी हम लोग असेट बेचते हैं तो उसका प्रोपोर्शनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है नहीं. अगर 1st जनवरी वाली असेट को हमने 1st जुलाई 19 को बेचा है
तो इसका मतलब इस 6 महीने के लिए डिप्रीसिएशन आएगा या नहीं? रुकना बराबर, ये 6 महीने का डिप्रीसिएशन चार्ज करके ही तो उसकी बुक वैल्यू 19,000 रुपए आई होगी, है ना? डिप्रीसिएशन इज एट 10% पर एनम, है ना? मतलब 6 महीने का डिप्रीसिएशन 5% आएगा या नहीं? अगर ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू था 100 रुपए, उस पर 5 रुपए का डिप्रीसिएशन, तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 95 और नॉट? If book value on the date of sale is equivalent to 95, that is 19,000. So what is equal to the opening balance? 20,000, है ना? 20,000 की एसेट थी, उसकी आज की बुक वैल्यू 19,000 है, मतलब 6 महीने का डिप्रीसिएशन 1,000 रुपए चार्ज किया होगा या नहीं? मैडम, आपको प्रोवाइड किया गया है क्या 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 किया गया है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम आते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स और नॉट? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट मतलब फर्नीचर का जो बैलेंस दिया हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस ये असेट सेल और परचेज होने के बाद ही आएगा ना, बराबर है ना? सो 40,000 के अलावा हमारे पास फर्नीचर था जो हमने बेचा। गॉट इट? कितने लोग को समझ आया मैंने क्या किया? अच्छा, रिवर्स वे राउंड, कितने लोगों को अभी भी दिक्कत है मैंने क्या किया? ओके, वेरी गुड, ऑब्जर्व इट। व्हाट देव क्लियरली मेंशन टू अस, book value of furniture sold on 1st of July 19 is 19,000 or not? मतलब book value on the date of sale or not? How do you arrive at the book value on the date of sale? By charging the proportionate depreciation till the date of sale or not? अगर 10% आपका सालाना डिप्रीसिएशन है तो 6 महीने के लिए डिप्रीसिएशन कितना चार्ज किया होगा? 5%। 5% डिप्रीसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू अगर 19,000 आ रही है तो इसका मतलब उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 100 अगर उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू थी तो 5% मतलब 5 रुपए उस पर डिप्रीसिएशन चार्ज किया, तो 95 इज द क्लोजिंग बैलेंस और नॉट? इफ 95 इज इक्विवेलेंट टू 19,000, व्हाट इज इक्वल टू 5? चलो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। डिप्रीसिएशन विल बी 1,000 और नॉट? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? सो बाय डिप्रीसिएशन कब? 1 जुलाई 2019 को कितना? 19,000 इंटू 5 अपॉन 95, दैट इज 1,000, बराबर है? जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिप्रीसिएशन डेबिट करोगे तो सिर्फ क्लोजिंग वाले एसेट पे डिप्रीसिएशन डेबिट नहीं करोगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये 1,000 रुपए का डिप्रीसिएशन भी डेबिट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपके पास एसेट थी कितने की? 60 माइनस 15, 45,000 रुपए। 1,119 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? बोलो बोलो, अरे बोलो। 45,000। 45 की एसेट थी, 15 की खरीदी, में से 20 की बेच दी, तो बची 40,000 रुपए की एसेट या नहीं? क्लोजिंग डिप्रीसिएशन जो आप कैलकुलेट करोगे वो 40,000 में से 15,000 रुपए पे 9 महीने का 3 महीने का डिप्रीसिएशन और 25,000 रुपए पे पूरे साल का डिप्रीसिएशन, बराबर है ना? 40 जो बचे हुए हैं इसमें से 25 तो ओपनिंग बैलेंस वाली एसेट बची हुई है ना? अरे हाँ या ना? 45 की ओपनिंग बैलेंस वाली एसेट थी, में से 20,000 की एसेट बेच दी, तो बची 25,000 की एसेट या नहीं ओपनिंग वाले में से, प्लस 15,000 की एसेट इस साल में खरीदी, तो टोटल डिप्रीसिएशन कितने पे क्लेम करोगे? 40 पे ही क्लेम करोगे ना? हाँ। डिप्रीसिएशन ऑन 31st December 2019, ओपनिंग बैलेंस 45 की एसेट थी, में से 20,000 की एसेट
बेच दी, जो बची हुई एसेट है उस पर 10% का डिप्रिसिएशन मतलब 2500 रुपए है ना, एंड न्यू एसेट कितने की, 15,000 रुपए की, उस पे 10% सिर्फ 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा या नहीं, दैट इज 375, टोटल डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2875, बट फर्नीचर का टोटल डिप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कितना डेबिट होगा, 3875। कैसे, 2875 बची हुई एसेट पे, 1000 का डिप्रिसिएशन बेची हुई एसेट पे। सही है, क्वेश्चन सिंपल था, एक ही ट्विस्ट था। सर एडलेस फॉर्म में दिखाओ, कमाल। चल एडलेस फॉर्म, क्लोजिंग फर्नीचर 45,000 है ना, मतलब क्या, अच्छा इसको एडलेस फॉर्म में डायरेक्टली पहले लिखता हूं स्टेटमेंट बनाने के बजाय, क्लोजिंग फर्नीचर इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स, है ना। ओपनिंग कितना था वो तो फाइंड करना है ना, क्लोजिंग दिया हुआ है 40,000, ओपनिंग फाइंड करना है, परचेस 15,000 का हुआ, माइनस सेल कितने का हुआ, 19 का नहीं, 19 का नहीं, सेल हुआ 19,000 प्लस 19,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 95। यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसका मतलब ओपनिंग फर्नीचर कितने का बचा, 40,000 माइनस 15,000 प्लस 20,000, दैट इज इक्वल टू 45,000। समझा एडलेस फॉर्म में? Why am I adding the depreciation back? Is because I have been given the book value as on the date of sale. जो असेट हमने बेची है उसकी बुक वैल्यू कौन सी डेट की दी है, 1 जुलाई की दी है, 1 जनवरी की नहीं। इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहे हैं। आर यू एबल टू गेट इट? पक्का? सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन, अंडर दैट फर्नीचर 1,000 plus 2875, that is 3875. Yes or no? लॉस ऑन सेल डेबिट किया क्या ऑलरेडी? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 11,000। सारा आंसर गलत हो गया ना 1,000 रुपए की वजह से। फिर ये 1,000 पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ये कहां से लेके आ जाते हो ऐसे अमाउंट्स? तुम्हारे सामने लेके आया, कैसे लेके आया? एनीवेज, लाइब्रेरी बुक्स को डिप्रिशिएट करना है 15% से। बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर एंड फिक्सचर इनर अमाउंट कॉलम 40,000 लेस डिप्रिसिएशन 2875। सर अब 2875 क्यों? क्योंकि जो असेट बिक चुकी उसकी तो पूरी वैल्यू बाहर जा चुकी ना, है ना। तो जो डिप्रिसिएशन हम लोग बैलेंस शीट में माइनस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बची हुई असेट का ही डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नहीं मतलब 2875। हाँ, 40,000 लेस डिप्रिसिएशन 2875 है जी। आउटर अमाउंट कॉलम, तो डराया मत कर यार बीच में ऐसे। आउटर अमाउंट कॉलम 37,125 बराबर। असेट साइड लाइब्रेरी बुक्स इनर अमाउंट कॉलम 60,000 लेस डिप्रिसिएशन 15% 9,000। आउटर अमाउंट कॉलम 51,000। हाँ अच्छा यस सर बोला था, डर गया ना सर। बिल्डिंग्स इनर अमाउंट कॉलम 2,50,000 लेस डिप्रिसिएशन 5% 12,500। आउटर अमाउंट कॉलम 2,37,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड फर्नीचर का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग 3,875। फिर लाइब्रेरी बुक्स कितना 9,000। फिर बिल्डिंग कितना, सॉरी 12,500। आउटर अमाउंट कॉलम
25,375. 25,375 is the depreciation on all the assets. सारे adjustment खत्म हो गए. We can come back to the items of trial balance. Building dealt with. Furniture fixture done. Library books done. Investments at 9%. कहाँ आएगा? Balance sheet asset side 9% investments 2 लाख. ऑब्जर्व करो, इसका कोई ब्याज दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है 16,200 नेट ऑफ टैक्स. मिलना कितना था? 2 लाख पे 9% के हिसाब से 18,000. 18,000 में से इन्होंने 16,200 हमको दिए, 1,800 रुपए मोदी जी को डायरेक्ट दे दिए. नेट ऑफ टैक्स है ना, मतलब दैट 1,800 रुपीज इज अवर असेट और नॉट. जब कब सर 16,200 है ना, टोटल इनकम कितना था? 18,000 में से 1,800 रुपए कट करके दिया था, तो 1,800 रुपए कहां आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. टीडीएस ऑन इंटरेस्ट. टीडीएस इज व्हाट? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. TDS, balance sheet asset side, TDS on interest into bracket 18,000 minus 16,200. क्योंकि जब तक हम मोदी जी से हिसाब नहीं कर लेते हैं तब तक ये हमारा इनकम है, सॉरी हमारा असेट है. चल नहीं रहा? क्या चल नहीं रहा? सब कुछ तो चल रहा है. नहीं तो फॉग वालों को पूछो. हाँ. Annual sport expenses, income and expenditure account, debit side. 2. Annual sports expenses, 6,000. Cash at bank. Cash at bank in the balance sheet asset side. Cash at bank, 20,000. Balance sheet asset side, cash in hand, 1,000. Admission fee, if nothing is provided, has to be considered as a capital income. Therefore, balance sheet, liability side. Capital fund, inner amount column. ये है ना? कहाँ है? General fund है ना? 4 lakh. General fund and capital fund is one and the same thing. 4 lakh. General fund and capital fund is one and the same thing. कैपिटल फंड मतलब क्या? जो फंड हमने हमारे एक्टिविटीज को लगाया हुआ है. जनरल फंड भी तो वही होता है ना. हाँ. 4 लाख. एड एडमिशन फी 5,000. ट्यूशन फी ऑलरेडी डन. क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज 6,000. रेंट फॉर हॉल 4,000. अब यहां इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ ये एक्सपेंस है, इनकम है. जनरली क्लब्स और सोसाइटीज के लिए हॉल वगैरह जो होते हैं ये रेंट पे दिए जाते हैं. सो फॉर देम इट इज एन इनकम. राइट? सो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रेंट फॉर हॉल. अच्छा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस इज मेंशन्ड ही है एनीवेज, सॉरी. हाँ, अगर ये सीक्वेंशियली भी दिया होता तो भी आई वुड हैव कंसीडर्ड दैट एज एन इनकम. 4,000. Miscellaneous receipts, credit side, by miscellaneous receipts, 12,000. Government grants, क्योंकि ये एक स्कूल है, स्कूल को कई तरह के ग्रांट्स मिलते रहते हैं फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज. सो गवर्नमेंट ग्रांट्स विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एंड देयरफॉर विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 123,800. General fund we have already dealt with. Interest on investment already dealt with. Donations received for purchase of library books. तो जब तक लाइब्रेरी बुक परचेज नहीं कर लेते हैं तब तक दिस विल बी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड और नॉट. लाइब्रेरी फंड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लाइब्रेरी फंड into bracket donations received 25,000. Sale of furniture already dealt with. Correct है? पक्का? Now what? Close the income and expenditure account, close the balance sheet. Has to tally. Is it clear for everyone? हाँ जी, सरप्लस बोलो.
सरप्लस ही होना चाहिए, खर्च बहुत कम किया हमने। वन 179,420 is the amount of surplus. Is it so? 179,420. नहीं नहीं, गलत है भाई तेरा। कैलकुलेटर मेरे को बैलेंस शीट टोटल बताऊं मैं जब तक। $250 माइनस 12,500, 40,000 माइनस 2,875, 60,000 माइनस कितना था 9,000, 2,18,100, 15,000, 18,000, 21,000। बैलेंस शीट टोटल शुड बी 581,425। 425। ए 920 आ ही नहीं सकता है, 5 आना चाहिए आखिरी में सरप्लस में। यूनिट प्लेस पे 5 आना ही चाहिए सरप्लस के अमाउंट में। मेरे को नहीं मालूम, बैलेंस शीट का टोटल इतना होना चाहिए। 130,425 इज इट द सरप्लस? 1,30,425 बराबर है ना? 140 कहां से आएगा? किस आइटम दिखा मेरे को, बराबर लिखे हैं नीचे, करने दे, भेज। ऑब्जर्व इट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्यूशन एंड अदर फी 2,15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, हॉल रेंट 4,000, गवर्नमेंट ग्रांट 1,23,800, मिसलेनियस रिसीट्स 12,000 बराबर है। डेबिट साइड में सैलरीज 1,82,000, डेप्रीसिएशन 25,375, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 6,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 11,000। इतने ही आइटम है ना। स्टेशनरी सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 किधर माइनस करेगा भाई, उस पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रहे उसको एक दे 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 दे। हाँ स्टेशनरी का अमाउंट कितना आया? 15,000, वो डेबिट नहीं किया तूने। उसके अलावा कुछ बचा है क्या? नहीं। सो लेट मी चेक। 2,15,000, 18,000, 123,800, 4,000, 12,000, 1,82,000, 25,375, 14,000, 11,000 एंड 15,000। एक 25,425 आ रहा है। सरप्लस अमाउंट इज 1,25,425। फाइनल अमाउंट है अब। सरप्लस इज 1,25,425। इज इट पॉइंट राइट? प्लस 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 6,000 के क्रेडिटर, 18,000 के प्रीपेड सैलरी एंड 25,000 की डोनेशन, 579,425। कितना? नहीं आ सकता है। $581,425, 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
4 लाख का तुम्हारा जनरल फंड, 5,000 एडमिशन फी, 125 425 का सरप्लस, 6,000 रुपए के क्रेडिटर, 18,000 रुपए का प्रीपेड सैलरी। अच्छा प्रीपेड 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। पकड़, फर्नीचर अकाउंट 40,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000, 45,000 का फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस था। जस्ट 1 मिनट। No, that is related to furniture only. Furniture and fixture, library books, investments you have considered at 2 lakh, salaries you have considered at 1,82,000, stationery is considered correctly, general expenses, just 1 minute, just 1 minute please. पाँच हजार, 2,00,000, 6,000, 4,000, 12,000, 123, 800, 4,00,000, 16,200, 25,000, 8,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा है ना ऑलरेडी आपने 11,000, और उसका डिप्रिसिएशन भी डेबिट किया हुआ है। अच्छा से, 1 मिनट, हाँ 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 हाँ, वेट, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ऑब्जर्व इट। Sale of furniture they have given in the trial balance. That means it is not been adjusted from the furniture account, but that has been treated separately. And as a result of this, what is happening is your net furniture that is to be considered is 20,000 lesser जो 20,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया वो। क्यों? अगर सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 क्रेडिट में दिया हुआ, मतलब ये इन्होंने डेबिट नहीं किया होगा। मैंने अगर फर्नीचर अकाउंट बनाया है, जो मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया आपके सामने, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माय फर्नीचर अकाउंट और नॉट। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है मतलब असेट सेल करने के बाद का फर्नीचर है या नहीं, है ना। पर अगर इन्होंने सेल ऑफ फर्नीचर अलग से क्रेडिट कर रखा है, इसका मतलब दे हैव गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर सोल्ड सेपरेटली और नॉट। तो वो जो 20,000 रुपए का फर्नीचर है, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्नीचर अकाउंट, एंड ओनली आफ्टर दैट यूल बी एबल टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ नेट फर्नीचर। इज इट पॉइंट राइट? फर्नीचर सेल हमने 20,000 वाला ही किया है, उस पर लॉस ऑन सेल 11,000 रुपए का ही है, उसका डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए का है। देयर वी हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, द मिस्टेक इज ओनली ऑन द पार्ट ऑफ सेल, दैट जो 40,000 क्लोजिंग है दैट इज बिफोर एडजस्टिंग द फर्नीचर सोल्ड। लिखो, आप एक नोट लिखो। इन द ट्रायल बैलेंस, ये यानी कि इन द ट्रायल बैलेंस value of furniture sold is provided. Value of furniture sold is provided, which means the furniture sold is not adjusted against the furniture account.
the furniture sold is not adjusted against the furniture account, therefore the closing furniture will be lesser by 20,000. Lesser by 20,000. Is that point right? सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपका फर्नीचर का वैल्यू अगर कम हो गया तो उसका डिप्रिसिएशन भी कम होगा या नहीं? यस और नो? मतलब हाँ, एक मिनट, I understand one mistake has the cascading effects, but the point is what? Ultimately doing the thing correct. Alright? तो अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो फर्नीचर का बचा वो कितना बचा? सिर्फ 5,000 रुपए. कैसे? अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस ही 20,000 रुपए का बचा, में से 15,000 का आपने इस साल में खरीदा था, तो जो बचा उसका 10% ही डिप्रिसिएशन आएगा ही नहीं. दैट इज 500. और जो नया असेट परचेस किया आपने उसका आपका 375 डिप्रिसिएशन, सो द टोटल डिप्रिसिएशन कम्स टू 875. करेक्ट? तो बैलेंस शीट असेट साइड थोड़ा सा चेंज. पुट इट फर्नीचर इनर अमाउंट कॉलम 40,000 लेस फर्नीचर सोल्ड 20,000. टोटल 20,000 माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन और उसका लॉस अलग से डेबिट कर रहे हैं हम लोग. बराबर? टू फर्नीचर सोल्ड 20,000, सॉरी, लेस फर्नीचर सोल्ड 20,000, लेस डिप्रिसिएशन 875. आउटर अमाउंट कॉलम 19,125. बराबर है? एट द सेम टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिप्रिसिएशन था वो 3875 की जगह कितना होगा? ओनली 1875. 1875 क्यों? 1,000 for the furniture sold and 875 for the remaining furniture. So total debit will be of 1875 or not? Accordingly the surplus will increase. बोलो 126,425 हो जाएगा. 127,425 will be the surplus, and now the balance sheet should tally. All right? इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो. अगर वापस से कोई गलती दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट कम बैक. I'll be sharing the questions tomorrow morning. Deadline is day after, and on Tuesday and Wednesday we are going to discuss the answers of questions which I am going to share tomorrow. Thank you. Bye bye. नहीं, सिर्फ YouTube लाइव होगा.